available to us, such as the GPS, GLONASS, Galileo, or the IRNSS. These navigation systems provide accurate information about each and every place on our planet Earth. But to provide such accurate information, they need certain inputs which not only have to be accurate but also unique to each and every place on the planet. This accurate information is provided by latitudes and longitudes, forming a grid across the globe, where each and every information has a unique intersection of these latitudes and longitudes. For example, Delhi is 28 degrees 37 minutes north and 77 degrees 10 minutes east. London, on the other hand, is 51 degrees 30 minutes north and 0 degrees 5 minutes west, whereas Sydney is 33 degrees 55 minutes south and 151 degrees 12 minutes east. The one that you see on the left is the latitude, and the one on the right is the longitude. So our main focus in the video would be to understand what are latitudes, longitudes, what are time zones, and eventually we'll also look at the international dateline. Alright, let's begin. Right, so सबसे पहले हम latitudes को देखेंगे. Latitudes are horizontal parallel circles around the globe. Now these circles are concentric and they circumvent the entire planet in a horizontal manner, each one at a unique distance starting from the equator towards the poles in both the directions. Equator से start करके northern और southern poles की तरफ हम जब जाएंगे तो हमें horizontal latitudes मिलेंगे. These are imaginary lines, जिसका मतलब ये है that they have been created for better understanding and for the ease of finding locations and traveling along with various other purpose. और जो ये लैटिट्यूड इक्वेटर पे है इसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं और नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स को 90 डिग्रीज लैटिट्यूड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये अभी हम देखेंगे. So basically the magnitude of these latitudes increases in both the directions towards the north and towards the south. तो ये एक मिरर इमेज बनती है. इक्वेटर से दोनों तरफ बराबर तरीके से लैटिट्यूड्स बनते हुए जाते हैं अप टिल 90 डिग्रीज इन बोथ द हेमिस्फेयर्स. एंड बाय द वे आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज द इक्वेटर ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन. ये इंडिया से पास नहीं होता है. इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. अब जब बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आ रही है तो हमें कुछ और लैटिट्यूड्स भी पता होने चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड सिमिलरली 23.5 डिग्रीज साउथ. नॉर्थ वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सदर्न पार्ट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उसके बाद 66.5 डिग्रीज नॉर्थ को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्रीज साउथ को हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल. अब ये डिग्रीज कैलकुलेट कैसे होती हैं, 0 डिग्रीज इक्वेटर को क्यों बोलते हैं और 90 डिग्रीज पोल्स को क्यों बोलते हैं और ये किस तरीके से बढ़ते हुए जाते हैं लैटिट्यूड्स. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स. Now a latitude is defined as the angular distance of a point on the Earth's surface measured in degrees from the center of the Earth both in northern and southern direction. अब इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं. बेसिकली अगर अर्थ को हम दो हाफ्स में डिवाइड कर दें, दो हेमिस्फेयर्स में अगर हम डिवाइड कर दें और जो डिवीजन है वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे करें, इक्वेटर के प्लेन पे अगर इसको हम काट दें दो हिस्सों में, देन दिस वुड बी द इक्वेटोरियल प्लेन और ये होगा बिल्कुल अर्थ का सेंटर जहां पे हमें कोर मिलता है. Now this is a 3D representation of the earth, of the sphere that we're talking about. तो अगर हम किसी भी लैटिट्यूड का डिग्री फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी भी लैटिट्यूड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम इस सेंटर से उस लैटिट्यूड का एंगल फाइंड आउट करेंगे कंसिडरिंग दैट द एक्स एक्सिस वुड बी द प्लेन ऑफ द इक्वेटर. तो लेट्स से अगर हमें इस वाले लैटिट्यूड का एंगल फाइंड आउट करना है एंड इफ दिस इज द इक्वेटर, तो अगर ये एंगल 60 डिग्रीज आता है तो ये लैटिट्यूड भी 60 डिग्रीज ही होगा. सिमिलरली पोल्स के अगर हम देखें तो ये एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा, considering that the x-axis would be the equatorial plane and the y-axis would be connecting the latitude that we are trying to find out, तो हम पोल्स की अगर बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो पोल्स का लैटिट्यूड भी 90 डिग्रीज होगा. सिमिलरली अगर हम इक्वेटर का एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, यू कैन सी दैट दिस इज द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का अपने खुद के रिस्पेक्ट में एंगल 0 डिग्री होगा, इसलिए इक्वेटर को हम 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं. सो बेसिकली व्हाइल फाइंडिंग आउट द लैटिट्यूड वी कंसिडर द सेंटर ऑफ द अर्थ, द एक्स एक्सिस इज द प्लेन ऑफ द इक्वेटर एंड देन वी फाइंड आउट द एंगल दैट लैटिट्यूड हैज एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल प्लेन. अब बारी आती है लॉन्गिट्यूड्स की. नाउ लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स दैट रन पोल टू पोल. ये कंसेंट्रिक नहीं है. क्यों नहीं है? द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर ऑलवेज द सेम एंड दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, क्योंकि ये इमेजिनरी सेमी सर्कल्स हैं, इसलिए यहाँ पे सेंटर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड्स का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, अनलाइक द लैटिट्यूड्स जहाँ पे इक्वेटर नेचुरली सेंटर से जा रहा था. कोई भी सेंटर मेरिडियन ना होने की वजह से
आर्टिफिशियली एक मेरिडियन डिसाइड किया गया इन 1884. इट वाज डिसाइडेड इंटरनेशनली to have 0 degree meridian, which is also known as the prime meridian, as Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London. Now this 0 degree, which is the prime meridian, is considered as the reference point to understand the location of the other meridians. तो बाकी जो भी मेरिडियन है वो इस 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में वेस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में होंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो अभी हम देखते हैं. जैसे कि पहले हमने देखा था कि लैटिट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम ये एंगल यूज करते हैं. सिमिलरली लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम इस एंगल को ऑब्जर्व करेंगे, विच इज डिनोटेड एज लैम्डा इन दिस फिगर. अब लॉन्गिट्यूड की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? इट इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. इसका